তার প্রস্তুতিতে নানান কর্মসূচি চলছে। আমার নিজেরও কিছু কর্মসূচি আছে, এখানে ঠিক সময় চলে এসছে। ভালো লাগলো এই এলাকার যারা তরুণ অংশ, তারা যেভাবে উৎসাহ নিয়ে চারিদিকে ডিআরএফআই ঝান্ডা লাগিয়ে প্রচার করে দিয়ে এরকম একটা বড় আয়োজন করে নিল। আজকাল তো বড় আয়োজন সব সরকারি টাকায় হয়, হয় কেন্দ্র সরকারের না রাজ্য সরকারের, আর সরকারি লোকজন পুলিশ মিলিটারি দিয়ে সব সাজানো হয়। এই যে ভলেন্টিয়ার, এই যে অ্যাক্টিভিস্ট, সেটা ক্রমাগত আমাদের দেশে এবং আমাদের রাজ্যে কমে গেছে। কারণ নিঃস্বার্থভাবে ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বেও সেখানেও কাজ করবে। এই যে নেওয়া দেওয়া, খাওন দাওন, কিছু একটা পাওয়া, এই লালসার মধ্যে মানুষকে ঢোকানো হয়েছে, ছোটানো হয়েছে। তার পরিণতি কি আপনারা দেখেছেন? পার্থ চ্যাটার্জি যে শিক্ষামন্ত্রী ছিল, তার এরকম টাকার পাহাড়, একটা দুটো নয়, যেখানে হাত দিচ্ছে সেখানে টাকার পাহাড় বেরোচ্ছে। আর যারা ছিল নবান্নে, যারা ছিল কালীঘাটে, যারা ছিল তৃণমূল ভবনে, তারা এখন সব নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিচ্ছে। এই গোটা প্রক্রিয়া কিন্তু, এটাকে বলে বৃত্ত, শুরু হয়েছিল কিন্তু নিজাম প্যালেস দিয়ে। মমতা ব্যানার্জি এবং মুকুল রায়, যারা অল্প বয়সী তারা জানেন, এই জন্য বলছি, আমরা যখন যুব তখন এই নিজাম প্যালেসে দোকান খুলেছিলেন। কারণ ওটা কেন্দ্রীয়, অনেকে জানে কেন, ওটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের গেস্ট হাউস। কেন্দ্রীয় সরকারের গেস্ট হাউস। আগে যেখানে চোরেরা বসে চুরি করার পরিকল্পনা করেছিল, দলবদলের পরিকল্পনা করেছিল, কেনাবেচা করেছিল, লুটপাটের ব্যবস্থা করেছিল, বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় গুরু, ইমাম, মজ্জেন, পুরুষ, তারা সবাইকে জড়ো করেছিল। बाहर में लगता था कि ये कोई धर्म का काम हो रहा है, कोई नेक काम हो रहा है, पवित्र काम हो रहा है, और अंदर अंदर लूट पाट, चोरी, धांधली, भ्रष्टाचार का योजना बन रहा था। अभी थोड़ा पर्दा फांस हो गया। पर्दे के पीछे क्या होता है वो लोगों को पता नहीं चलता है। और हम लोग जब ये बात बोलने लगे तो लोग बोलते তোমরা বামপন্থী না, ওসব বুঝতে পারবে না, এখন সব জমানা পাল্টে গেছে, এখন নতুন জমানা চলে এসছে। আমি যেটা বলতে मोदी जी न्यू इंडिया, क्या न्यू इंडिया है आप अभी देखें, कभी हाथरस में, कभी उन्नाव में, कभी जम्मू में, कभी राजस्थान में, कहीं दलित कन्या তার উপরে গণধর্ষণ হচ্ছে, খুন করে দিচ্ছে, তার পরিবারের লোকজনকে লাশ পর্যন্ত দিচ্ছে না, পোস্টমর্টম তো ছেড়ে দিন, জীবিত বা মৃত তাকে পুড়িয়ে মারছে। हाथरस का कांड में आप देखे थे, माँ गाड़ी के सामने, पुलिस के गाड़ी के सामने तड़प रही थी कि मेरे बेटी को मेरे पास दो, लाश दो। पुलिस ले जाकर उसमें पेट्रोल छिड़क करके जला दिया। अच्छा, वही कांड हम यहाँ हासखाली में नहीं देखे? गणधर्षण हलो, 5 दिन কেউ জানে না, আর যখন মেয়েটার চিকিৎসার দরকার তখন তাকে জোর করে বাঁশে বেঁধে নিয়ে গিয়ে হরিবোল করে দিয়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারবে। আজ পর্যন্ত কেউ জানে না ওরা জীবিত না মৃত। আর মুখ্যমন্ত্রী নবান্ন থেকে চিৎকার করে বললেন, বাবা চুপ করেছিল কেন, 5 দিন ধরে বলেনি কেন? আর ওখানকার পুলিশ, ওখানকার ধর্ষক, ওখানকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত, তারা বললো যদি বাইরে বলো তাহলে তোমাদেরকেই ফাঁসি দেবো মিথ্যা মামলায়। বাবাকেই ধর্ষণ কেসে ফাঁসি দেবে বলে এফআইআর করে রেখেছে একটা আগে থেকেই। তাহলে পুলিশ জানতো না, এটা বলতে পারে না। সরকার মিথ্যে কথা বললো। সরকার क्या कही, हमें मालूम नहीं था। अरे मालूम नहीं था, मैं हासखाली में गया था। जो बच्ची के साथ ये कांड हुआ, जिस दिन मालूम हुआ स्कूल का छुट्टी हो गया, अफसोस से, शोक से। तो मालूम नहीं था लोगों को, मालूम तो था, तो स्कूल की छुट्टी कैसे हुआ? ये कांड नहीं, ऐसे इंसाफ रैली হচ্ছে। ইনসাফ মানে ন্যায়। কেন ন্যায়?
কারণ আমাদের দেশ স্বাধীনতা আন্দোলন 200 বছর ধরে লড়াই করা হয়েছে। अंग्रेज के जमाने में न्याय नहीं था, निचले तबके के लोग, दबे कुचले लोग, उनको इंसान नहीं माना जाता था। आज जैसे जिसको बोलते हरिजन, गांधी जी नाम दिया सम्मान के लिए, नाम ऐसा होता है, लेकिन असल में वो डिप्रेस्ड, अंबेडकर की भाषा में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भाषा में वो है डिप्रेस्ड क्लास, ऑप्रेस्ड क्लास। इसका मतलब है दलित। बांग्ला दलित माने ताई तो पददलित, जिनको सदियों से ये कहा गया धर्म के नाम पर कि तुम नीचे हो और बाकी लोग ऊंचे हैं। अंग्रेज आकर क्या किया, उसी धारा है, दलित तो थे, लेकिन जो भी काला है, जो भी देसी है, वो सबको बोला वो नेटिव है और बाकी सब साहब है, मेम है, अंग्रेज है। ये गुलामी का निशानी है। हमने 200 साल संघर्ष किए, उसके लिए निचोड़ निकला एक, अगर बड़े ताकत साम्राज्यवाद के विरोध में लड़ना है, जे इंग्रेज सरकारें बोला हो तो सूर्य डूबे ना, पूरे दुनिया में सल्तनत है। अभी जैसा बोलता है रानी बाप रे बाप, उसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे, बहुत बड़ा गुंडा है, उसके विरोध में कैसे लड़ेंगे, उसके पास पुलिस है, उसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे, उसके पास मिलिट्री है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके साथ मीडिया है, उसके साथ बहुत दलाल है, ऐसा बोला जाता है ना। तो अंग्रेज के साथ सब था ना, ये सब थे ना। आज जो दलाल देख रहे हो, उसके बाप दादा भी दलाली किया उस समय, अंग्रेज का दलाली किया। आज जो राजा रजवाड़ा की बात करते हैं, ये सब ज्यादातर राजा रजवाड़ा अंग्रेज की गुलामी मान लिए। तो लड़ा कौन? जो आदिवासी, जो दलित, जो अल्पसंख्यक, जो विद्यार्थी, जो नौजवान, जो गांव के लोग, जो बस्ती के लोग, कॉलोनी के लोग, वो इकट्ठा हुए। तो आजादी का लड़ाई का पहला सीख ये है, कमजोर तबका अगर एक साथ होता है तो हमारा एक शक्ति का निर्माण होता है। से प्रबल प्रतापान्वित साम्राज्यवादी विरुद्ध लड़ते पारे, तो उसके लिए एकता की जरूरत है। जो लड़ना चाहते हैं वो एकता चाहते हैं, और जो लूटना चाहते हैं वो एकता को तोड़ना चाहते हैं। जो अंग्रेज के जमाने में कहा था डिवाइड एंड रूल, जिसका परिणाम हुआ भारत का विभाजन हुआ, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा फसाद हुआ और एक देश दो टुकड़ा हो गया। तो आज देखो कौन वो लोग हैं जो एकता के विरोध में हैं, जो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदी बंगला बिहारी बंगाली, ऊंचे जात नीचे जात, आदिवासी अनादिवासी, ये बिगाड़ कौन कर रहा है? देश प्रेम। आजादी की लड़ाई के लिए दूसरा था कि देश का प्रेम, देश के प्रति, देश के प्रति भालोबासा, मोहब्बत। उर्दू में कहते हैं हुब्बुल वतन, वतन का मतलब देश। अभी तो हमारे देश में बंगला में कोई, अगर मैं हिंदी में कोई कविता बोल दिया तो वैसा ही तृणमूल का कुछ ग्रुप है बोलता है जय बांग्ला बांगाली, बोलता है तुम बांग्ला থাকো, तुम हिंदी कविता बोलছো, तुम उर्दू शायरी করছো। धर्म के नाम में सिर्फ नहीं, भाषा के नाम में। ये मुख्यमंत्री जब गई थी ना गोरखपुर में, काकीनाडा में, जहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा था, बमबाजी हो रहा था, जहाँ टीकागढ़ में स्कूल में बम फेंका। पहले तो बम हिंदू और मुसलमान के नाम में चला ना, अभी विद्यार्थी के ऊपर बम फेंका जा रहा है, स्कूल के ऊपर। तो ये एक निशानी है। তাহলে যারা হিন্দু মুসলমান নামে বোমাবাজি করেছে, তাহলে আসল উদ্দেশ্য হিন্দু মুসলমানকে মারবে, মুসলমান হিন্দুকে মারবে না, দুইজনেই মিলে শিক্ষাকে মারবে। এই যে শিক্ষক নিয়োগ এই দুর্নীতি হচ্ছে, এই যে স্কুলে শিক্ষক নেই, पढ़ाई लिखाई खत्म, आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ट्यूशन रखना पड़ेगा। वामपंथी माने अवैतनिक शिक्षा, बिना पैसे में पढ़ाई होगा, शिक्षक का ठीक से एसएससी इम्तिहान होगा, नियोग होगा, जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल बनेगा, जहाँ टीचर नहीं है वहाँ टीचर डाला जाएगा। जो बच्चा भूखा आता है उसको मिड डे मील देना पड़ेगा, यूनिफॉर्म देना पड़ेगा, किताब देना पड़ेगा,
साइकिल देना पड़ेगा। क्यों? ताकि सबसे गरीब जो भूखा है, जिसके बाप दादा नानी दादी कभी शिक्षा प्राप्त नहीं हुआ, वो भी ताकि स्कूल में आए। अब पिछले 3 साल में हम क्या देख रहे हैं? कोरोना के समय पर छुट्टी लोग खूब खुश, चलो 1 महीने का छुट्टी, 1.5 महीने का छुट्टी, 2 महीने का छुट्टी। असल में क्या है, मिड डे मील का जो खर्चा है वो पैसा लापता हो जाएगा। अब बोलते हैं बीजेपी अब लोगों में बहुत झगड़ा है। क्या झगड़ा है? बीजेपी बोलेगा हम मांसाहारी नहीं हैं तो बच्चे अंडा क्यों खाएंगे, तो अंडा खाना बंद कर दो। कुपोषण हो रहा है, वो बेटा अपने घर में मुर्गी खा रहा है और स्कूल के बच्चे का मुंह से अंडा छीन रहा है और वहां धन का इस्तेमाल कर रहा है, जाति का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल हमारे पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था को बम मार के उड़ाने की कोशिश की जा रही है। टीटागढ़ के बम से आवाज निकल रहा है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जादवपुर विश्वविद्यालय हो, कलकत्ता विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर का नियोग हो, स्कूल सर्विस कमीशन, मद्रासा सर्विस कमीशन, स्कूल बोर्ड, ये जो निजाम पैलेस में भी सब जा रहे हैं मंत्री, ये जो रुपये निकल रहा है, ये जो बड़ा बड़ा देसी विदेशी कंपनी आकर के स्कूल कॉलेज प्राइवेट खोल रहा है, जैसा चिकित्सा में हुआ, सरकारी हेल्थ सेंटर अस्पताल में आपको मौका नहीं मिलेगा, तब आपको प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना पड़ेगा। एक किसी का बीमारी हो गया, बड़ा कोई बीमारी हो गया, किडनी का, हार्ट का, तो जिसके पास घर है उसको बंद करना पड़ेगा, जिसके पास जमीन है उसको बंद करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी सरकार की थी। यही है वामपंथी और दक्षिणपंथी में फर्क। वामपंथी का मतलब है चाहे हमारा आवास हो, चाहे हमारा शिक्षा हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा खाद्य हो, रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आजादी का मतलब यही था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि आजादी का जो जनता का हक था, सबसे दबला पिछड़ा, सबसे दुबला, सबसे दलित, सबसे पिछड़ा, दबे पिछड़े लोग, सदियों से जिनको दबाया गया, उनका अधिकार तो हमारे संविधान में कहा गया सब समान। ये बहुत के अंदर पचा नहीं। जो ब्राह्मणवादी समाज है, जो सदियों से ये कहता है हम ऊंचा है तुम नीचा हो, आज जिसका ये कहता है मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन पढ़ेगा, प्राइवेट कॉलेज में जो पढ़ेगा जिसके पास पैसा है। इधर बोलता है आरक्षण खत्म करो, एससी एसटी का आरक्षण क्यों होगा, सब समान। और दूसरी तरफ कहता है जिसके पास 50 लाख रुपया है उसका बेटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके स्कूल में शिक्षक भी नहीं जाएगा। तो नया आरक्षण हो रहा है ना, ये नया ब्राह्मणवाद है। मोदी जी बोल रहे हैं न्यू इंडिया। न्यू इंडिया का मतलब यही है जैसे तैसे हो, एक मुट्ठी भर लोग ऊपर में रहेंगे और आम जनता नीचे होगी, जिसके राशन में केरोसिन तेल नहीं होगा, जिसके खाद्यान्न में चावल गेहूं में जीएसटी टैक्स लगेगा, जिसका कोयला, जिसका केरोसिन तेल, जिसका गैस महंगा हो जाएगा, और उधर अदानी अंबानी जैसे लोग पूरे विश्व में सबसे बड़े लोग हो जाएंगे, सबसे अमीर होंगे। तो फिर हमारा संविधान गया कहां? संविधान में समानता की बात की गई। समानता का मतलब सिर्फ सबका एक वोट नहीं, अम्बेडकर जी कहा। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सबका एक वोट नहीं, सबका वोट का समान कीमत भी। हमारे बंगाल में तो वो एक वोट भी खरीद लिया जाता है। या आप कॉर्पोरेशन के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में देखो कैसे लूट मार होता है, वोट डालने नहीं दिया जाता है, वो हक भी नहीं देते। अब पूरे देश में उस वोट का कीमत सबका समान होने से भी जो वोट दे रहा है उसका कीमत समान नहीं है। अदानी अंबानी का कीमत और हमारे यहाँ के हरिजन भाई का कीमत एक है। ये खाई बढ़ रहा है। गरीब और अमीर के अंदर जो अंतर है वो बढ़ रहा है। तो हमारे संविधान में जो समानता की बात की गई थी वो सोचा गया था 20, 25, 30, 50 साल में हम उसको लागू कर पाएंगे। हम 75 साल में ये देखे कि वो और ज्यादा बढ़ गया। इसलिए न्याय की बात, इसलिए इंसाफ की बात।
अब थाना में जाओ, किसी भी थाना में जाओ, मणिकर्णिका थाना में जाओ, विनायक थाना में जाओ, आप अगर एक मर्सिडीज गाड़ी लेकर जाओगे तो गेट में जो पुलिस है वो सैल्यूट मारेगा, जरूरत पड़ेगा तो आपसे सामने आकर के दरवाजा खोल के आपके ये क्या बात है। और आप अगर एक थोड़ा फटा चित्रा कपड़ा पहन के जाएंगे, गमछा पहन के चले जाएंगे या लुंगी पहन के चले जाएंगे, तो फिर गेट में बोलेगा किधर किधर जाता है, समझता नहीं है। 5 स्टार होटल हो सकता है कि वो ज्यादा कीमती अमीरों का है, लेकिन जो खाना है, जो स्कूल है, जो अस्पताल है, वो तो गरीब के लिए था, वो भी अमीरों के लिए हो गया। और इसलिए होड़ लगा है जैसे तैसे हो, लूट करके हो, कचोट करके हो, डकैती करके हो, अमीर बन जाना है। ये हवस है लोग के अभावे चोरी करे ना, स्वभाव चोरी करे। ये भी एक सोच ऐसा डाला गया, अरे वो तो गरीब है, वो तो भिखमंगा है, ऐसा बोलते हैं ना। जब वो नारदा कांड में डॉक्टर काकुली घोष दोस्तीदार को, जब वो एमपी जो है ना दरबाजी का और लेकर तरफ से, उसके जब नोट लेके पकड़ा गया, ममता बनर्जी क्या बोली मालूम है? आप लोग गौर नहीं किए, बोले यार ওর কাছে এত টাকা আছে, ওই কোন টাকা নেবে কেন? गरीब का अपमान है। मतलब चोरी कौन करेगा, रिश्वत कौन लेगा? जिसके पास पैसा नहीं है। और जिसके पास पैसा है, अरे रविन्द्रनाथ बोले গেছে নে জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যা ভুরি ভুরি, রাজার হস্ত, হ্যাঁ রাজার হস্ত করে সমস্ত, কাঙ্গালের ধ্বংস করে সমস্ত, এটা খেয়াল রাখতে হবে, ওটা ভুলে গেলে চলবে না। राजा हस्त करे समस्त, सब चाहिए। वो जो रुपये का पहाड़ देखे ना, पार्थों का, आपा का, वो क्या उसके खाने के लिए, भोजन के लिए? अरे एक गरीब जनता यहाँ जो लोग है, वो जिंदगी भर मेहनत करता है, पैसा कमाता है इसी सोच में कि मेरा जिंदगी तो फुटपाथ में हो गया, लेकिन कम से कम मेरा बेटा का जब शादी देंगे, बहू आएगी, तो एक तो मकान होना चाहिए, घर होना चाहिए। सीधा अंतर है। गरीब का सोच होता है हम कमाएंगे, मेहनत करेंगे, उससे पैसा जमाएंगे, फिर लोन लेंगे, कर्ज लेंगे, होम लोन, हाउस लोन, मिडिल क्लास भी तो सोचता है कि एक तो घर हो जाए, एक तो फ्लैट हो जाए। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में? और वो क्या करते हैं, बुलडोजर लेकर के आके बस्ती उजाड़ते हैं, दंगा फसाद में आग जलाते हैं। आज तक इस देश में कोई फसाद में, कोई 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, कोई गेटेड कम्युनिटी जहां अमीरों का बसेरा होता है, वहां आग नहीं जला। आग में जब झुलसता है तो वो कोई हरिजन बस्ती होता है, कोई मुसलमानों का बस्ती होता है, कोई रिफ्यूजी का कॉलोनी होता है, कोई गरीब का आशियाना होता है। इसलिए हम एकता की बात कर रहे हैं, इसलिए न्याय की बात कर रहे हैं, और इसलिए उसका भी जीने का हक है। हमारे देश में जो राज चला रहे हैं, जो तृणमूल के लोग हैं, उनसे पूछ रहे हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पर, सभी, मैं तो यहाँ का सांसद था, मुझे मालूम है পরিবর্তনের জমানা অনেকে মনে করলো এটা ভালো কিছু হবে, হইলেই করে নেওয়া করলো, কিছু বুদ্ধিজীবী শিল্পী সাহিত্যিকরা বললেন, কিছু চিট ফান্ডের টাকা বললো, কিছু বিরিয়ানির প্যাকেট বললো, তো তারপরে কি দাঁড়ালো? গরিব মানুষ টাকা জোগাড় করে একটা ঘরের জন্য, আর তৃণমূলের নেতারা ঘর জোগাড় করে টাকা রাখার জন্য, তাই তো? गरीब नौजवान सोचता है एक तो घर बन जाएगा तो फिर शादी करेंगे, शादी क्यों नहीं करते? बोले क्या करेंगे, ला के रखेंगे कहाँ, एक ही तो चारपाई है, माँ बाप भी है, उसमें नानी दादी भी हो सकता है, बच्चा भी है, भाई भी है, तो एक तो घर नहीं होगा तो बीवी को रखेंगे। और तृणमूल के लोग क्या कर रहा है, मंत्री लोग, मेयर, यहाँ प्रशांत चटर्जी भी है, आगे वाला जो मेयर था ना प्रशांत चटर्जी, बीवी के साथ और भी 2 एक तो बंगला का उपपत्नी, प्रेमिका, गर्लफ्रेंड, तई तो घोषित अघोषित बीवी का जुगाड़ करता है। लोग एक बीवी के लिए घर ढूंढता है, और वो 2-4 बीवी ढूंढते हैं कि सबके नाम में अलग अलग बंगला होगा, अलग अलग घर होगा, जहां ये रुपया रखा जाए। ये ऊंचा और नीचा का फर्क, संघर्ष यही है, अमीर और गरीब का फर्क, झूठ और सच्चाई के खिलाफ जो लड़ाई चल रहा है दोनों के अंदर, सत्य और सत्य के अंदर, न्याय और अन्याय के अंदर, वो लड़ाई में आप किस तरफ हो, यह जरूरत है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, आप जो रक्तदान शिविर आयोजन किए,
ये डीएफआई, मैं भी डीएफआई करता था, कलकत्ता जिले का सेक्रेटरी था, कभी यूनिट का फुटबॉल कमेटी का कन्वीनर था, लोकल कमेटी का मेंबर था इसी कलकत्ते में, फिर ऑल इंडिया सेक्रेटरी बना। अब मैं नौजवान नहीं हूँ। अभी देखो, रक्तदान वही लोग कर सकता है जिसका उम्र है, जिसका सेहत ठीक है, सब लोग नहीं कर सकता। तो डीवाईएफआई जो रक्तदान कर सकता है वो दूसरा कोई भी पार्टी का कोई भी नौजवान संगठन कर नहीं सकता, क्योंकि अगर रक्तदान करना है तो नशा मुक्त होना है और दिमाग से, सोच से थोड़ा हट के होना चाहिए। जहाँ पे लोग लूट रहे हैं, इधर का माल उधर कर रहे हैं, সেখানে লোকে নিজের শিরা ছেদ করে বক্ষ উজাড় করে রক্ত দেবে। তবে যারা বলে আমি কি পাবো তারা কখনো রক্ত দিতে পারে না, যারা বলে আমি কি দেব তারা রক্ত দিতে পারে। রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে যুব আন্দোলনের প্রথম পাঠ করে, সে নিজের ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা থেকে উঠে সমাজ কেন্দ্রিকতায় যায়, উত্তরণ ঘটে। ये जो छोटा छोटा घेरे में डाल देता है ना, खंड ক্ষুদ্র করে গিয়ে প্রাচীর করে, সেখান থেকে তার উত্তরণ ঘটে, সেটা সামগ্রিকতার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়। বিশ্ব মানবতা এক। जिस देश में धर्म के नाम से और जाति के नाम से छुआछूत, आप देखा भी मेघवाल पर बच्चे को किस तरह से मारा राजस्थान में स्कूल में, क्योंकि हेड मास्टर का जहां पानी रखा जाता है उस पानी को वो छू करके पी लिया। प्यासा, गर्मी में हालत खराब होता है, राजस्थान की गर्मी और ज्यादा होता है। वहां एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, वो पानी पी लिया तो छुआछूत के नाम पर। हम आजाद हैं? हम अब भी छुआछूत से आजाद नहीं हैं। मैं तमिलनाडु जाता था पहले तो हैरत होता था, उधर चाय की दुकान में दो अलग दुकान था, ऊपर तक नीचे तक लिखा है। ऊपर वाले ऊंची जाति के लिए ऊपर वाला था और नीचे जाति के लिए नीचे वाला था। चाय बागान एक है, चाय पत्ती एक है, चाय बनाने वाला, पानी उबालने वाला केतली एक है, आग जल रहा अंगार एक है, चूल्हा एक है। लेकिन चाय जब ढालेगा, जो आपके होंठ पे लगेगा, तो आपकी जाति के मुताबिक वो ग्लास उतारा जाएगा कि ये नीचे वाला ताक का है, ये ऊंचा वाला जात का है, और ऊपर वाला ताक का पानी ग्लास अलग रखा जाएगा। उसको बोलता है डबल टम्बलर सिस्टम। वो छोटा ग्लास होता है ना, वो जिसमें तो चाय बिकता है, चुल्लू भी बिकता है, छोटा वाला जो शीशा का ग्लास होता है ना, तो उसमें उसको टम्बलर बोलते हैं। तो वहां लिखा रहता है हमारे दुकान में डबल टम्बलिंग सिस्टम है, डबल टम्बलर सिस्टम है। और जो दलित है उसको अपना ग्लास खुद से धो करके, तुम्हें कोई छुएगा नहीं, फिर उसको वहां ले जाकर देना पड़ेगा। आज वही चीज पूरे देश में, जो बंगाल में नहीं था, वो बंगाल में ले आया जा रहा है, और तभी ये मॉब लिंचिंग होता है। कौन क्या खाएगा, क्या छुआछूत होगा, उसके बनिस्बत रक्तदान का হচ্ছে যে দেশে ধর্মের নামে জল চললো না, এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের হোটেলে খাবে না, इसका घर का खाना उसके घर में नहीं जाएगा, उसी देश में ये विज्ञान का जय है। विज्ञाনের জয়যাত্রা, যেখানে দাঁড়িয়ে যদি ব্লাড গ্রুপ মিলে যায় তাহলে একজনের রক্ত আরেকজনের দেহে যাবে। রাজীব মজুমদারের রক্ত মোহাম্মদ সেলিমের গায়ে যেতে পারে, মোহাম্মদ সেলিমের গায়ে রক্ত রূপকথির গায়ে যেতে পারে, যেখানে জাত পাত ধর্ম বর্ণ কোনো भेद নেই। এটাই বিজ্ঞান, এটাই আসল মানবতা। तो क्या ये सवाल नहीं पूछेंगे कि जहां खून चल जाता है, एक का खून दूसरे के रग में दौड़ जाता है, एक का कलसी का पानी या दूसरा नहीं पी सकता? अंबेडकर जी इसीलिए हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाए थे दीक्षा भूमि में, नागपुर में। आज जो नागपुर से नए से फिर हिंदुत्व के नाम पर ये जो धर्म में पराकाष्ठा होच्छे, সেই नागपुरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश में सबसे सुशिक्षित लोगों के अंदर एक, जिन्होंने संविधान लिखा और लड़ाई किया, जो ये हक दिए समानता की, न्याय की, आज उसके ऊपर धप्पा लाया जा रहा है। वो ये कहते कि छुआछूत बंद करो, हमारे दलितों को समान समझो, नहीं तो हम तुम्हारा धन त्याग रहे हैं। और दीक्षा भूमि में 10 लाख लोगों को एक साथ होकर के बौद्ध धर्म अपना लिए थे। मैं ये नहीं कहता धर्म का परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने से उपासना की पद्धति बदलती है। धर्म ग्रंथ पाल्टे जाए, मंत्र पाल्टे जाए,
উপাসনার স্তর পাল্টে যায়, উপাস্য দেবতা পাল্টে যায়, কিন্তু যে সামাজিক, যে অর্থনৈতিক, যে রাজনৈতিক শোষণ আছে সেটা পাল্टाए ना। इसलिए हम कहते हैं राहुल संकीर्तन के भाषा में भागो मत, दुनिया को बदलो। हम इस अन्याय के विरोध में लड़ रहे हैं और DYFI नौजवानों को इसी प्रेरणा से प्रेरित करता है कि हम भाग करके कहाँ जाएंगे, हमें इस दुनिया को बदलना पड़ेगा। ठीक है, हमें एक होना पड़ेगा, एक रूप भावना तैयार करना पड़ेगा और एक लक्ष्य निर्धारण करके इंसानियत के नाम पर इंसाफ के तकाजे में हमें एक साथ होना पड़ेगा। न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए और मानविकता के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। रक्तदान शिविर से आपने जो शुरुआत किया, जो लोग मेहनत करके इस आयोजन किए, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और DYFI SFI जब जाएंगे 20 तारीख को आप बाकी लोग भी इस इंसाफ रैली में शरीक होंगे। इस निमंत्रण लेने के लिए मैं आपके साथ आया था। धन्यवाद, इनका धन्यवाद।